بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ماں جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ دروازے سے ہی چیخا۔ صابر اسکول سے واپس آیا تو اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو برآمدے میں پڑی چارپائی پر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ صابر نے بستہ کندھے سے نیچے پھینکا، دوڑ کر اپنی ماں کو گود میں لے لیا۔ صابر 7 سال کا بچہ، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دوڑ کر جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالنے لگا تو اس کی ماں زور زور سے کھانسنے لگی۔ صابر نے پانی کا گلاس ماں کے لبوں سے لگا دیا۔ صابر کی جنت اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اپنی جنت کے لبوں سے پانی کا گلاس لگائے بیٹھا تھا، لیکن پانی اندر جانے کی بجائے باہر آ رہا تھا۔ اس کی جنت اس کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ صابر کے آنسو گلاس میں گر رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھا، مجبور تھا۔ اس کی ماں کا وقت آ گیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اس کے ہاتھوں میں دم دیا تو صابر نے ایک بہت زور سے چیخ ماری جو اس کے گھر کے در و دیوار کو ہلا گئی تھی۔ صابر کی ماں کا ساکت جسم اس کے ہاتھوں میں تھا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے گر کر فرش پر کرچی کرچی ہو گیا تھا اور پانی فرش پر پھیل گیا تھا۔ صابر ابھی 7 سال کا ہی تھا جب اس کا باپ فوت ہوا تھا۔ اس کی عمر صرف 1 سال تھی۔ صابر کی ماں نے باپ کے بغیر صابر کی پرورش بڑی مشکل سے کی تھی۔ وہ دل کی مریضہ تھی۔ آج دل نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور دھڑکن بند کر دی تھی۔ صابر کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ کروڑوں کی دنیا میں اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ ایک ماموں تھا جو شہر میں رہتا تھا۔ صابر کا ماموں اکرام کافی خوشحال تھا۔ اکرام کی شادی ایک امیر کبیر گھرانے کی لڑکی رخشندہ سے ہوئی تھی۔ رخشندہ نے اس سے صرف اس شرط پر شادی کی تھی کہ وہ گھر داماد بن کر رہے گا، اس لیے اسے گاؤں چھوڑ کر شہر رہنا پڑا تھا۔ اکرام رخشندہ سے دب کر ہی رہتا تھا۔ صابر کی ماں کو منو مٹی میں دفن کر کے صابر کا ماموں سے شہر لے گیا تھا۔ صابر کی ممانی رخشندہ نے صابر کو دیکھ کر ناک بمیں چڑھائیں، لیکن رخشندہ کی بیٹی تابندہ صابر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس مصیبت کو تم یہاں کیوں لے آئے ہو؟ رخشندہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ رخشندہ اسے کس کے سہارے چھوڑ کر آتا؟ اب ماں باپ کے بعد اس کا سہارا میں ہی تو ہوں۔ اکرام ماموں نے منمنا کر جواب دیا، ٹھیک ہے رکھو اپنے ساتھ، مگر میری بیٹی کے آس پاس بھی یہ غریب اور جاہل لڑکا نظر نہ آئے۔ وہ غصے سے منہ بسورتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ یہ صابر کی اس گھر میں پہلی رات تھی۔ آؤ صابر، میں تم کو اپنے کھلونے دکھاؤں۔ تابندہ نے صابر کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں کھلونے دکھانے کی۔ رخشندہ نے بڑی حقارت سے صابر کا ہاتھ تابندہ کے ہاتھ سے چھڑا دی۔ اکرام رخشندہ کی یہ حرکت دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ صابر کو یوں لگا جیسے وہ شودر ہو، تابندہ برہمن خاندان کی بیٹی۔ رخشندہ کا یہ روپ صابر کے لیے کوئی نیا نہ تھا، کیونکہ وہ جب بھی اپنے ماموں کے گھر آتا تھا اس کی ممانی کا رویہ اسی طرح کا ہی ہوتا تھا، اس لیے صابر بہت کم اپنے ماموں کے گھر آتا تھا۔ لیکن اب تو اسے یہاں ہی رہنا تھا۔ گاؤں میں اس کا کوئی بھی نہ تھا۔ شہر میں صرف ماموں تھا جو بے بسی کی تصویر بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے یوں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ رخشندہ اکرام کو گھورنے لگی، اس کی ماں مر گئی ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ رخشندہ اکرام کو گھورنے لگی، اس کی ماں مر گئی ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ اکرام نے بڑی مشکل سے رخشندہ کو جواب دیا، یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ ہے، یہ میرا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں۔ رخشندہ غرائی تھی، کیا کہہ رہی ہو رخشندہ؟ اتنے بڑے گھر میں یہ بھی رہ لے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ جس مقصد کے لیے اس کو یہاں لائے ہیں وہ میں خوب جانتی ہوں، کس مقصد کے لیے لایا ہوں۔ جب سے تابندہ پیدا ہوئی ہے آپ کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے۔ توبہ ہے رخشندہ، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ جب اللہ وہ وقت لائے گا تو دیکھا جائے گا۔ دیکھا نہیں جائے گا، میں ابھی آپ پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔
रुखशंदा की बातें साबर के कानों पर हथौड़े बरसा रही थी। अपनी ममानी की बातें सुनना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था, मगर भाग कर जाता भी तो कहाँ। वो तो चिड़िया के बच्चे की मानित था जिसके अभी अभी पर निकले थे। वो उड़ नहीं सकता था, इसमें ताकत परवाज नहीं थी। इसलिए अब उसे इसी घर में रहना था और अपनी मुमानी की कड़वी कसेली बातें सुननी थी। लोरी देने वाली माँ तो अब इस दुनिया में रही नहीं थी। मीठी लोरी की बजाय अब मुमानी की कड़वी बातें उसका मुकद्दर थी। उसकी तकदीर में शायद यही लिखा था कि बाकी की ज़िंदगी उसने मुमानी के रहमो करम पर गुजारनी है। कहते हैं तकदीरें बदलती हैं दवाओं के असर से, लेकिन साबर के पीछे दवाएं करने वाली माँ तो न थी। अब कौन था जो उसके लिए दवाएं करेगा। रुखशंदा इसलिए साबर से सख्ती से पेश आती थी कि कहीं उसकी नरमी को देखकर अकराम तबिंदा और उसकी शादी ना कर दे। रुखशंदा तबिंदा की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी जिनका लिविंग स्टैंडर्ड उसके बराबर का हो। रुखशंदा ने साबर को अपने घर में रहने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन साबर की इस घर में हकीकतन हैसियत अकराम के बांचे की नहीं बल्कि एक नौकर की थी। रुखशंदा तबिंदा को लेकर बाजार गई। साबर को भी वो साथ ले गई। तबिंदा को उसने 2-3 बहुत महंगे रेडीमेड कपड़े खरीद कर दिए। जब वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान से बाहर निकली, दुकान के बाहर एक रेहड़ी वाले बच्चों के कपड़े सजाए आवाज़ें लगा रहा था। बच्चों का सूट 100-100 रुपये। रुखशंदा ने परस से 200 रुपये निकाले और 2 सूट साबर को खरीद कर दे दिए। हालांकि तबिंदा का एक एक सूट उसने 3-3 हज़ार में खरीदा था। रेहड़ी वाला जिस दुकान के सामने खड़ा था वो खिलौनों की दुकान थी। खिलौनों की दुकान देखकर तबिंदा खिलौनों के लिए जिद करने लगी तो रुखशंदा तबिंदा और साबर को लेकर खिलौनों की दुकान में चली गई। वहां से तबिंदा ने 2-3 खिलौने खरीदे। शोकेस में सजी एक खूबसूरत गुड़िया को साबर बड़ी महवियत से देख रहा था। साबर, तुमको ये गुड़िया पसंद है? तबिंदा ने पूछा। बड़ी खूबसूरत गुड़िया है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अम्मी, साबर को ये गुड़िया ले देना। कितने की है ये गुड़िया? रुखशंदा ने दुकानदार से पूछा। सिर्फ 1200 की। लड़के गुड़ियों से नहीं खेला करते, चलो अब निकलो दुकान से। रुखशंदा गुड़िया की कीमत सुनकर फौरन दुकान से निकल जाना चाहती थी। अम्मी, साबर को ये गुड़िया ले दें, इसको बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई है। फिर रुखशंदा तबिंदा को ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर दुकान से बाहर आ गई। साबर को उसने कपड़ों वाले छापर पकड़ाए हुए थे। वो उनके पीछे पीछे दुकान से बाहर आ गया। गाड़ी रुखशंदा खुद ड्राइव कर रही थी। सब गाड़ी में बैठे और घर आ गए। घर आकर जब सारा सामान चेक किया गया तो पता चला कि तबिंदा ने जो खिलौने लिए थे वो तो दुकान पर ही रह गए। ये गलती रुखशंदा की जल्दबाजी की वजह से हुई थी, जो जल्दी जल्दी खिलौनों की दुकान से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि तबिंदा बार बार साबर की पसंद की हुई गुड़िया के लिए इसरार कर रही थी। अब शाम हो चुकी थी। अगले दिन रुखशंदा ने फिर साबर को साथ लिया। बाजार से कुछ और शॉपिंग की। सारे शॉपर साबर पर लादे और खिलौनों की दुकान पर पहुंच गई। कल मैंने अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदे थे, वो आपकी दुकान पर ही रह गए थे। रुखशंदा दुकान में दाखिल होते ही दुकानदार से मुखातिब हुई। ये रहे जी आपके खिलौने। मैंने तो आपको बहुत आवाज़ें दी, मगर आप गाड़ी भगा कर ले गई। साबर कल वाली गुड़िया को आज भी बड़ी महवियत से देख रहा था। पता नहीं क्या कशिश थी इस गुड़िया में। गुड़िया की शक्ल कुछ कुछ तबिंदा से मिलती थी। गुड़िया की एक टांग टूटी हुई थी। इसकी टांग को क्या हुआ? साबर ने दुकानदार से पूछा। मैं सुबह दुकान की सफाई कर रहा था, ये नीचे गिर गई, मेरे पाँव के नीचे आ गई। अब ये गुड़िया मैं तुमको सिर्फ 100 रुपये में दे सकता हूँ। दुकानदार ने अब इस बेकार गुड़िया की कीमत 100 रुपये ही वसूल करना गनीमत जाना, क्योंकि वो तो इसे अब डस्टबिन में फेंकने वाला था। साबर की जेब में तो 100 रुपये तो क्या 100 पैसे भी ना थे। जेब खाली हो तो सपने देखने फजूल होते हैं। दौलत जेब में हो तो बंदा बड़े बड़े ख्वाब भी देखता है और उन ख्वाबों की ताबीर भी पा लेता है। साबर ने इस गुड़िया के हसूल के लिए ख्वाब इसलिए देखना शुरू कर दिए थे कि अब गुड़िया की कीमत 1200 की बजाय सिर्फ 100 रुपया थी। लेकिन एक टांग वाली गुड़िया अब भी उसकी पहुंच से बाहर थी। यतीम बच्चों के ख्वाब अधूरे ही होते हैं। ख्वाब तो सिर्फ अपने वालिदैन ही पूरे करते हैं। ये गुड़िया इसको दे दो। रुखशंदा ने 100 रुपये का नोट निकाल कर दुकानदार को दिया। साबर गुड़िया लेकर बहुत खुश हुआ। 1200 का एहसान उसने साबर पर 100 में कर दिया था। रुखशंदा के लिए ये कौन सा महंगा सौदा था। साबर मासूम था, रुखशंदा की चालाकी समझ ना सका।
वक्त का पहिया चलता रहा। तबिंदा और साबर जवान हो गए। अकराम और रुखशंदा ने बुढ़ापे में कदम रख दिया था। औलाद जब जवानी में कदम रखती है तो वालदैन के कदम बुढ़ापे की सीढ़ी के पहले जीने पर पहुंच चुके होते हैं। अब तो अकराम और रुखशंदा के दरमियान रोज़ तबिंदा के रिश्ते के बारे में तकरार होने लगी थी। अकराम तबिंदा की शादी साबर से करना चाहता था, जबकि रुखशंदा तबिंदा की शादी किसी हाई क्लास घराने में कराना चाहती थी, जहां गैराजों में लंबी लंबी गाड़ियां और नौकरों की लंबी लंबी कतारें लगी हों। लेकिन तबिंदा को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो भी साबर को पसंद करती थी। साबर भी अब पढ़ लिख कर बैंक में अच्छी जॉब पर था, लेकिन रुखशंदा तो ऐसा लड़का चाहती थी जो बैंक में काम ना करता हो बल्कि बैंक का मालिक हो। रुखशंदा के ख्यालात बहुत ऊंचे थे, जबकि साबर बहुत छोटा था। रुखशंदा के ख्यालात तक पहुंचना उसके बस में न था। घर में वीटो पावर भी रुखशंदा के पास थी। उस वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए रुखशंदा ने तबिंदा का रिश्ता शहर के इंतहाई अमीर घराने में कर दिया था। इस घराने के हर फर्द के पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। सलीम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी दौलत का कोई शुमार ही न था। सलीम ने पहली नज़र में ही तबिंदा को पसंद कर लिया था। पसंद भी क्यों ना करता, तबिंदा लाखों में एक थी। उसका लंबा कद, सराहीदार गर्दन, मोटी मोटी आंखें, दूध की तरह सफ़ेद रंगत उसके हुस्न को चार चांद लगाते थे। सलीम के घर में सिर्फ 3 अफराद थे। सलीम, उसकी माँ और उसके बाप। तीनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं। रुखशंदा ने ये सारी सूरत हाल देखकर तबिंदा को भी ड्राइविंग सीखने पर मजबूर किया। चंद दिनों की ट्रेनिंग के बाद तबिंदा थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना सीख गई थी। तबिंदा की जब झिझक खत्म हुई तो वो एक दिन गाड़ी लेकर अकेली ही मेन सड़क पर चली गई, लेकिन सड़क पर जाकर उससे गाड़ी संभाली न गई और उसकी गाड़ी एक वैन से टकरा दी, जिससे वैन में बैठी सवारियां मामूली जख्मी हुई, लेकिन तबिंदा को शदीद चोटें आईं। तबिंदा की गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई सड़क के नशेब में जा गिरी, जबकि तबिंदा गाड़ी से निकलकर सड़क पर जा गिरी। वो बेहोश हो गई थी। एक ट्रक आया, उसका एक टायर तबिंदा की बाईं टांग के ऊपर से गुजर गया, जिससे तबिंदा की बाईं टांग बुरी तरह कुचली गई। लोगों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। हजूम में से किसी ने 1122 को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही 1122 अपना मखसूस सायरन बजाती हुई जाए हादसा पर पहुंच गई थी। 1122 के अहलकारों ने बेहोश तबिंदा को गाड़ी में डाला और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया। तबिंदा की टांग बुरी तरह कुचली गई थी। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की कि टांग बच जाए। तबिंदा ने पैसा भी पानी की तरह बहाया, लेकिन सब तदबीरें बेकार हो गई थीं। होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार तबिंदा की टांग काटनी पड़ी। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद तबिंदा एक टांग के साथ घर वापस आ गई। तबिंदा को घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन सलीम की तरफ से तबिंदा की मिजाज कुर्सी के लिए कोई ना तो अस्पताल आया था और ना अभी तक घर आया था। रुखशंदा रोज़ सलीम की राह तकती थी, लेकिन सलीम ने ना आना था और ना ही वो आया, क्योंकि दुनिया तो मुकम्मल लोगों में नक्स निकालने से बाज नहीं आती। तबिंदा तो अब नामुकम्मल हो चुकी थी। अब वो किसी के सहारे की मोहताज थी। गैर भी कभी किसी का सहारा बनते हैं। आखिर चंद दिन बाद सलीम का फ़ोन आ गया कि वो तबिंदा से शादी नहीं कर सकता। ये फ़ोन कॉल रुखशंदा ने ही सुनी थी। रुखशंदा के लिए सलीम की कॉल नहीं थी, बल्कि एक गाली थी। ख्वाबों के महल कभी कभी ऐसे भी यकदम गिरते हैं, ये तो रुखशंदा ने कभी सोचा भी ना था। तबिंदा अब एक मलबे का ढेर थी, जो हर वक्त बेड पर पड़ी रहती थी। इस मलबे को उठाने वाला अब कोई ना था। रुखशंदा अपने तकब्बुर की सज़ा पा चुकी थी। उसका गरूर खाक में मिल गया था। साबर को दूल समझने वाली रुखशंदा अब खुद दूल बन चुकी थी। हवा का हल्का सा झोंका भी दूल को उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। इससे पहले कि ये दूल उड़ जाती, साबर हल्की सी बूंदाबांदी बनकर इस दूल पर बरस पड़ा था। दूल अपनी जगह बैठ गई थी। आंधी से पहले बूंदाबांदी हो जाए तो दूल को उड़ने का डर नहीं होता। साबर भी बरस कर दूल को महफूज कर लिया था। हुजला अरूसी में तबिंदा दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी बैसाखियां भी उसके पास ही पड़ी। साबर ने तबिंदा का घूंघट उठाया तो तबिंदा ने शर्म से आंखें बंद कर ली। अब ये पता नहीं था कि तबिंदा ने आंखें शर्म से बंद की थी या नदामत से। आखिर तबिंदा ने आंखें खोली तो उसने देखा साबर के हाथ में वही एक टांग वाली गुड़िया थी जो उसकी मुमानी ने उसको बचपन में लेकर दी थी। साबर, ये गुड़िया तुमने अभी तक संभाल कर रखी हुई है? तबिंदा नजरें चुराते हुए बोली। ये गुड़िया मैंने इसलिए संभाल कर रखी है ताकि ये मुझे अपनी औकात याद दिलाती रहे कि मेरी औकात क्या है। साबर, मुझे याद है जब हम बाज़ार शॉपिंग करने के लिए गए,
میری ماں نے میرے لیے مہنگے کپڑے خریدے تھے اور تمہارے لیے دکان کے باہر لگی ریڑھی سے 2 سستے سے سوٹ خرید کر تم کو دے دیے تھے، جس گڑیا کی قیمت 1200 تھی۔ جب وہ بیکار ہو گئی تو میری ماں نے وہ گڑیا تم کو 100 روپے میں لے کر تم پر احسان چڑھا دیا تھا۔ اب جب میں بھی کسی کام کی نہیں رہی تو میری ماں نے مجھے بھی تم کو سونپ دیا۔ صابر، میں اپنی ماں کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ صابر، مجھے معاف کر دو۔ جو چیز بیکار ہو جاتی ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دی جاتی ہے۔ صابر، میں شرمندہ ہوں، میری ماں نے تم کو ڈسٹ بن سمجھ رکھا ہے۔